Hello students, good afternoon. My dear students, today we are going to discuss about the second lesson of your textbook Vistas. The name of the lesson is The Tiger King. Dear students, this is a very comical story, very interesting story, very beautiful story, written by a great Tamil writer Kalki. This is the pen name of the writer. The name of the writer is Ramaswamy Iyer Krishnamurthy. He is a great Tamil writer and Indian English writer. He is a great journalist, story writer, novelist, poet, film review. Okay? And here he describes a story, a comical story about a king named Sir Jilani Jang Bahadur, the Maharaja. The short name of the king was the Tiger King, king of Pratibandhapuram. He is a comical character, very interesting character. Okay, so there are three main characters in this story. First one is Tiger King, the Maharaja. He is the king of Pratibandhapuram and he kills 99 tigers. Okay? Means destruction of the population of the tigers. Destructions the population of the tigers. Kills 99 tigers. And second character is chief astrologers and state astrologers who tells future. Astrologers, predictor. Chief astrologer, he had a deep knowledge in astrology, a great astrologer, and he predicted about a 10-day boy, Tiger King, how he will die, what will be the reason of his death. Okay? And third character is the Devan. Devan was the chief minister. He is the chief minister of the king, Tiger King, Jilani Jang Bahadur. And in short, his name was the Tiger King. He is known as Tiger King and he is a very comical character in this story. Devan, the chief minister of the Tiger King, very faithful, trusty person for the Tiger King, but at last he saved his job. He saved his job. How? By bringing an old tiger from People's Park, Madras. Now it is known as Chennai. Okay? So this is the third character of this story, the Devan, chief minister of Tiger King. He is also very comedian character in this story and he did his best to save his job.
Okay, there are three main characters in this story, and we discuss about the story. My dear students, this is the full name of the Tiger King, Sir Jilani Jang Bahadur, and he is known as Tiger King. In short, he is known as a Tiger King. When he was born, आफ्टर 10 days, आपको पता है कि उसका नामकरण के लिए उसके एक संस्कार होता है, ठीक है। कुछ दिन बाद एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया टू गिव हिम हिज नेम, उसको नेम देने के लिए। उसके कुछ और फॉर्मेलिटीज़ होती हैं फैमिली में, तो किसको बुलाया गया? एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया। अब उसमें एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया द बॉय विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ग्रेट, वेरी पावरफुल, किंग ऑफ किंग्स, बहुत सारी चीजें उसकी बहुत तारीफ किया। बट वन डे ही विल हैव टू डाई, ये भी कहता है कि एक दिन उसे मरना होगा। अब इसमें एक मैरेकल होता है। क्या मैरेकल हुआ? जब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया, व्हेन द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट द प्रिंस विल बी अ ग्रेट किंग, बट वन डे he will have to die and death would come from tiger. What will be the reason? The tiger. उसने बताया कि जिस नक्षत्र में, जिस स्टार्स में इसका जन्म हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसने जो पूरा एक कैलकुलेशन किया, उसने बताया कि इसको एक दिन मरना होगा। 10 day बॉय वो क्या करता है? स्पोक, नॉट ओनली स्पोक बट रेजेस, ही आल्सो रेजेस लॉजिकल क्वेश्चंस, रीजनेबल स्टेटमेंट्स भी उसने बोले कि ये कौन सी नई चीज बता रहे हो? व्हाट यू आर टेलिंग अ न्यू थिंग। सभी को मरना है, जिसने जन्म लिया है, एवरीवन हैव टू डाई वन डे। इसमें नई चीज आप क्या बता रहे हो? अगर आपको बताना ही है तो बताओ, व्हाट विल बी द मैनर ऑफ डेथ, कैसे डेथ होगी? अगर ये आप बता सकते हो, मैनर ऑफ डेथ बता सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये तो सबको ही जानता है। He asked intelligent questions, logical questions. अब ये जो डिस्कशन है होने के बाद फिर आगे क्या होता है? उसने सारी चीजें बताई। रीजन क्या है? ठीक है, रीजन ये है कि जिस स्टार में आपका जन्म हुआ है, ठीक है, अब उसको, और वो स्टार्स और जो टाइगर है, ये दोनों एक दूसरे के एनिमी होते हैं। तो अगर इस स्टार में आपने जन्म लिया है तो आपकी डेथ का रीजन टाइगर होगा। सब डिटेल में उसने बताया। आफ्टर दैट धीरे धीरे द बॉय ग्रेव अप, बड़ा हुआ, ग्रे स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, टॉलर, बहुत जल्दी रैपिड ग्रोथ उसका हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो उसे इंग्लिश ट्यूटर लगाया गया टू टीच इंग्लिश काऊ। इंग्लिश काऊ का दूध पीता था। इंग्लिश नैनी उसका केयर करती थी। इसके बाद इंग्लिश मूवीज़ देखना पसंद करता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बड़ा हुआ। एंड when he completed his 20 years, at the age of 20 years,
crowned as a king. He became the king of प्रतिबंधपुरम. अच्छी स्टोरी है. प्रतिबंधपुरम का वो क्या बनता है? राजा. When he completed his 20 years, at the age of 20 years, crowned as a king. और इसके बाद उसने जो एस्ट्रोलॉजर है उसकी बात को उसके अकॉर्डिंग उसने जो रिकॉल किया, रिमाइंड किया, उसने फिर बिगिनिंग, ही बिगिंस क्या? द हंट ऑफ टाइगर. उसने स्टार्ट किया एंड ही किल्ड फर्स्ट टाइगर. ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर एंड सेंट टू स्टेट एस्ट्रोलॉजर. पहले टाइगर को उसने मार दिया. पहले टाइगर को मारने के बाद उसने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को के पास भिजवाया. उसे कहा कि देखो, तुम कहते थे ना कि टाइगर से मेरी डेथ होगी, मैंने टाइगर को मार दिया. अब जो स्टेट एस्ट्रोलॉजर है उसने कहा कोई बात नहीं, यू हैव टू किल एज अ सेम मैनर जस्ट लाइक इट 99 more. You have to kill 99 more tigers and you have to be very careful with the handed tiger. With the handed tiger. जो handed tiger होगा, 100वां जो टाइगर होगा, उससे आपको बहुत केयरफुल रहना है. केयरफुल रहना, ठीक है. और इस तरह से क्या हुआ कि प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स थे, 1 by 1 उसने बिगिनिंग किया सबका शिकार करना. और तब तक के लिए उसने कहा कि मैं कोई भी किसी तरह के मैटर पे, जो भी किंगडम से रिलेटेड, जो भी इसके राज्य से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते थे, उसने कहा मैं किसी मैटर पे कोई बात नहीं करूँगा जब तक मैं अपना टारगेट कंप्लीट नहीं करूँगा. आफ्टर किलिंग 100 टाइगर, इसके बाद ही मैं कुछ करूँगा. ठीक है. और इस तरह से उसी के ड्यूरिंग दैट टाइम ही फेस्ड अ थ्रेट ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम. एक ब्रिटिश ऑफिसर आया. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग एंड अ फोटोग्राफ विद द कॉर्प्स ऑफ द टाइगर. ठीक है. डेड टाइगर के साथ फोटो शूट करना, फ़ोटो खिंचाना, टाइगर को मारना, ये उसे बहुत पसंद था. और जब वो प्रतिबंधपुरम में आया, व्हेन ही केम एंड गॉट व्हेन ही आस्क्ड द किंग कंसेंट के लिए, जब उसने उससे कहा, रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे मुझे टाइगर हंटिंग करना है, तो इस कंडीशन में अगर वो मना करता है, मना कर दिया उसने, टाइगर किंग ने मना कर दिया. फिर इसके बाद उसने कहा कि अगर टाइगर किंग ने अपनी जब बात बताई तो उसने कहा ठीक है, यू मे किल योर टाइगर बट गिव मी परमिशन ओनली फॉर अ फोटोग्राफ विद द डेड टाइगर. उसके साथ मुझे केवल फ़ोटो चाहिए. फ़ोटो के लिए उसने जो है उससे कहा. ठीक है. लेकिन अब इस कंडीशन में भी उसने मना कर दिया. लेकिन अब उसके पास कोई मतलब कोई चांस नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था. हाउ ही सेव हिज किंगडम. अब उसे दिक्कत थी. इसके पहले तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, टाइगर को तो मुझे मारना चाहिए. ठीक है. उसने सुना था, कहीं कहावत कहीं सुनी थी, यू मे किल इवन अ काऊ इन योर सेल्फ डिफेंस. अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम काऊ को भी मार सकते हैं, ऐसा उसने कहीं सुना था. इसलिए उसने टाइगर मारने के लिए डिसाइड किया और उसने टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर दिया. लेकिन आज जो कंडीशन है, हाउ ही सेव हिज किंगडम, इसके लिए उसने क्या किया, एक प्लानिंग किया. उसने 50 डायमंड रिंग्स नियर अबाउट 3 lakhs, उसकी जो कॉस्ट थी वो 3 lakhs थी. उसने टाइगर के उसने ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को उसने गिफ्ट कर दिया, उसने भेज दिया. और उसने सोचा कि 2-4 रिंग्स वो लेंगी
लेकिन 50 डायमंड रिंग्स में उसने सब कुछ रख लिया, पूरी रिंग्स उसने रख लिया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये करने के बाद फिर भी वो खुश था। द टाइगर किंग वॉज वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि ही सेव्ड हिज किंगडम बाय गिविंग 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ। ब्रिटिश ऑफिसर वाइफ को इतनी रिंग्स भेजने के बाद उसने जो है अपने राज्य को लॉस होने से बचा लिया। ठीक है, तो ये जो उसका ऑब्स्टिकल्स था, जो ब्रेकर्स था, यहाँ से वो आगे बढ़ गया। यहाँ तक चीज़ें, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी और अब तक उसने 70 टाइगर्स को शूट कर चुका था। 70 ही किल्स 70 टाइगर्स इन 10 years। 70 टाइगर्स इन 10 years। 10 years में जो है उसने 70 टाइगर्स को उसने मार दिए और अब तक उसके स्टेट में, उसके किंगडम में, प्रतिबंधपुरम में आसपास एक्सटिंक्शन हो गया, वैनिश्ड हो गए, सारे टाइगर उसने मार दिए। नथिंग, एक भी नहीं बचा। ठीक है, अब उसने प्लानिंग किया, नो टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम एंड टारगेट 30 मोर। अब तो 30 टाइगर के जो टारगेट था उसे कंप्लीट करने के लिए उसने प्लानिंग किया। अपने दीवान से उसने कहा कि कोई ऐसी लड़की को, कोई रॉयल फैमिली की लड़की से मुझे शादी करनी है जहाँ पे जिसके राज्य में, जिसके स्टेट में बहुत ढेर सारे टाइगर्स हों, बड़े जंगल हों, ठीक है, फॉरेस्ट हों। तो उसने वही प्लानिंग किया और उसने उससे शादी कर लिया। ठीक है, ही मैरिड अ गर्ल ऑफ अ रॉयल फैमिली। व्हेनेवर ही यूज्ड टू गो देयर ही किल्ड 5 or 6 टाइगर्स। अपने फादर इन लॉ के यहाँ जब भी जाता था, एक ट्रिप में, एक राउंड में 5 या 6 या 7 टाइगर्स को मार देता था। इस तरह से करते करते फाइनली एट लास्ट ही हंटेड 99 बट 1 मोर। अभी भी एक की ज़रूरत थी। अब वहाँ भी टाइगर ख़त्म हो गए, अब उसको एक टाइगर की और ज़रूरत थी। अब वो सोचता है अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, पास के ही एक विलेज में कुछ ऐसे र्यूमर्स, एक न्यूज़ आई कि शायद वहाँ पे टाइगर हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो है छोटे छोटे जो एनिमल्स थे वो वहाँ से गायब हो रहे थे। तो उसने ये तक भी कह दिया कि वो जो है 3 years तक उसका जो टैक्स है विलेजर्स का, गांव वालों का, वो रिलीफ कर देगा, रिलैक्स दे देगा। ठीक है, अगर किसी ने भी टाइगर को सर्च करके मेरे पास अगर ये न्यूज़ लाया या अगर एक टाइगर मुझे मिल गया तो मैं इतने साल तक, मतलब 3 years तक मैं टैक्स में एक्सेम्पशन दे दूंगा, मतलब मैं उसको रिलैक्स कर दूंगा। हो फाइंड द टाइगर। लेकिन इसके बावजूद भी जब टाइगर नहीं मिला तो गुस्सा हो गया, अपने यहाँ के जितने एम्प्लॉयज़ थे सबको निकाल दिया, टैक्स, लैंड टैक्स डबल कर दिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था, एंग्री पोजीशन में आ गया, क्योंकि उसका भी एक टारगेट जो था वो फुलफिल नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया। और दीवान को भी उसने वार्न कर दिया कि अगर एक टाइगर नहीं मिलता है तो यू हैव टू गिव मी रिज़ाइन, यू हैव टू रिज़ाइन योरसेल्फ। आपको भी रिज़ाइन देना होगा यहाँ से, आप भी अपनी नौकरी यहाँ से, अपनी जॉब यहाँ से लॉस कर देंगे। ठीक है, वो सब इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया और पूरे फॉरेस्ट में घूमता रहता था, टेंस, अपसेट था। तो इस अपनी जॉब बचाने के लिए दीवान ने क्या किया, अपनी वाइफ के साथ पीपल्स पार्क मद्रास गया, वहाँ से एक ओल्ड टाइगर को लेके अपने घर में छिपाया रखा कुछ टाइम के लिए, हिडन इन हिज हाउस। और उसको ले जा करके जहाँ पे टाइगर किंग सर्च कर रहा था टाइगर को, वहीं पे ले जाकर इसने उस टाइगर को कार से नीचे गिरा दिया, वहाँ पे उसने उसको भेज दिया। और जब टाइगर किंग ने देखा तो उसने उसको शूट कर दिया, मार दिया, कोई बात नहीं, हंटेड ही पुट इन द फॉरेस्ट बट किंग, द टाइगर किंग मिस्ड हिज शॉट। जो उसका शॉट था वो मिस हो गया, लेकिन जो उसके हंटर्स थे, जो उसके
उसके जो हेल्पर्स थे उन्होंने कहा अगर हम ये न्यूज़ जाके बताएंगे कि टाइगर अभी जिंदा है, अभी टाइगर जिंदा है, बट टाइगर अभी मरा नहीं है और आपने अपना जो शॉट है वो मिस कर दिया है, तो ही विल पनिश अस, हमें पनिश करेगा, इसलिए हंटर्स ने उसे शूट कर दिया। तो टाइगर किंग का तो 100 नहीं कंप्लीट हुआ ना, उसका तो 99 ही रह गया। एक टाइगर बच गया क्योंकि उसको हंटर्स ने उसको शूट करके ले जाके जब उसको उसके पैलेस में ले गए, बहुत खुश हुआ। ईच टाइम एवरी टाइम ही एंजॉयड द डे, सेलिब्रेट करता था, बहुत खुश हो जाता था, ठीक है। और अपने महल में 99 टाइगर्स की जो स्किन है उसने अडॉर्न किया था, चारों तरफ डेकोरेट किया हुआ था, बहुत खुश था। अब जब उसने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया तो उसने क्या किया, उसका जो बेटा था he was going to celebrate the 3rd birthday of his son, और वो अपने सन के लिए गिफ्ट दिलाने के लिए मार्केट में गया, कई जगह गया। तो एक ऐसी दुकान में गया जहाँ पे एक कारपेंटर ने बहुत अच्छा सा एक वुडन टाइगर बनाया था और बहुत सस्ता था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है। लेकिन उसने सोचा कि इसको दाम कम बताएंगे, व्हेन आई टेल हिम लो प्राइस ही विल पनिश मी, तो उसने भी उसकी तारीफ़ करके उसको महंगे दाम में बेच दिया। और जो वुडन टाइगर है, बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद टाइगर किंग अपने बेटे के साथ व्हेन ही वाज प्लेइंग विद हिज सन विद द वुडन टाइगर, उस वुडन टाइगर से वो खेल रहा था और उसी में की एक जो स्लीवर थी, उसके जो रेशे होते हैं, उसके लेफ्ट हैंड में कहीं ना कहीं वो चुभ गया, उसके लेफ्ट हैंड में, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या आया, टाइगर टू हिज सन ऑन हिज बर्थडे उसे गिफ्ट करना चाहता था। और जब वो खेल रहा था तो उसमें एक जो टिनी स्लीवर थी लेफ्ट हैंड में, वो उसको गड़ जाती है, चुभ जाती है। इसके बाद वो धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि सर्जन बुलाए जाते हैं, 3 सर्जन्स मद्रास से बुलाए जाते हैं। उन्होंने उसको ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद उसने कहा, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द टाइगर किंग वॉज डेड, लेकिन जो टाइगर किंग था वो मर गया, उसको वो लोग नहीं बचा पाए। कहने का सेंस ये है कि फाइनली जो 100 टाइगर था उसने अपना फाइनल रिवेंज बदला ले लिया। मतलब जो एस्ट्रोलॉजर का जो स्टेटमेंट था वो राइट निकला। मतलब भले ही वो वुडन टाइगर था, इट वाज अ वुडन टाइगर, बट फाइनली ही टेक हिज रिवेंज, उसने बदला ले लिया और वो लास्ट में टाइगर किंग की डेथ हो गई। और डेथ का रीज़न कौन बना, टाइगर, भले ही वो वुडन टाइगर था। तो ये एक अच्छी स्टोरी है, आपको समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।